Hello students, welcome you all to our second session of our chapter number 10, that is circles. Students, in the previous session we studied regarding the definition of secant and tangent, very importantly tangent to the circle. Okay, then what we have studied, we discussed the statements of theorem 10.1, 10.2 and then exercise 10.1 हमने complete किया था. Okay students, some more definition also we did. Now let us discuss some more topics of this chapter. Okay students. So students, our today's first topic is number of tangents from a point on a circle. Okay, from a given point in a plane, how many tangents can you draw on a circle? एक circle पे आप कितने tangents बना सकते हो from a point? Okay, so let us see the three cases here. You can see the three cases students, that if a point is inside the circle, the first case आपका है that the point P is inside the circle. So if a point P is inside the circle, then there is no tangent to a circle passing through that point. क्योंकि वो पॉइंट P अंदर है, तो अगर कोई पॉइंट इंटीरियर है, सर्कल के इंटीरियर में है, यू कैनॉट ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल. देखो आप देख सकते हो कितने सारे लाइंस P में से जा रहे हैं, बट ऑल दीज लाइंस आर व्हाट? सेकेंड, because they are intersecting the circle at two distinct points. Okay students, then if a line touches the circle at only one point, then it is what? Tangent to a circle. There is one and only one tangent to a circle passing through a point lying on the circle. You can see that in the second case there is a point P, it is lying on the circle, then exactly one tangent can be drawn through that point P, and that point P is called the point of contact. Okay students, then you can see the third case, that if a point P lies in the exterior of the circle, अगर वो सर्कल के बाहर है पॉइंट P, then you can draw exactly two tangents to the circle from that exterior point. आप P से लेके देखो दो टेंजेंट बना सकते सर्कल को. You can see one tangent is PT1 and the other tangent is PT2. So in this way we are discussing the three cases. In the first case, if the point P lies in the interior of the circle, then you cannot draw any tangent to the circle. All the lines will be passing through that point P will be the secants of the circle, not the tangents. In the second case, that if we are drawing tangent at exactly the point on the circle, then you will draw exactly one tangent, and that point will be the point of contact. And if the point P is lying in the exterior of the circle, then exactly two tangents can be drawn from that exterior point. I hope you understood all these three cases. Okay students. Now students, let us discuss theorem 10.3. What is the statement of the theorem 10.3? The lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Students, now only we have discussed that if a point P is in the exterior of a circle, then you can draw exactly two tangents. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि P एक exterior point है and we are drawing two tangents PR and PQ to the circle. Now what you have to prove in this theorem? This theorem 10.3 says that if P is an exterior point and you have drawn two tangents, then the length of the tangents will be equal. Means you have to prove that PR equal to PQ. So let us see what is given in this question. In this theorem, it is given that we have a circle with center O and a point P lying outside the circle. Okay, two tangents PQ and PR are on the circle from point P. And what you have to prove? That PR equal to PQ. Tangents के length क्या होते हैं? Same होते हैं exterior point से. So what we are doing? Join three line segments OP, OR and OQ. You can see dotted line से तीन line segments हमने जोड़ दिए, where OQ and OR are the radii and OP is from the center to the exterior point. Okay students, so we all know that OQ is perpendicular to PQ because OQ is radius, तो radius हमेशा tangent को क्या होता है? Perpendicular. तो Q पे कितना होगा? 90 डिग्री. Similarly OR is perpendicular to PR क्योंकि OR भी radius है और PR क्या है? Tangent to the circle. Okay, तो R पे भी कितना होगा? 90 डिग्री. I hope you understood students. Angle Q is 90 degree as well as angle R is 90 degree because they both are the point of contact. तो वहाँ पे right angle बनेगा. Now we have two triangles, right angle triangles. One is triangle OQP and other is triangle ORP. They both are right angle triangle. है ना? तो what we have in both this triangle, the first is OP equal to OP.
दिस OP लाइन सेगमेंट इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, सो OP इक्वल्स टू OP, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में. देन OQ इक्वल टू OR. क्यों OQ और OR इक्वल होगा? बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. एक ही सर्कल के दो रेडियस है तो दोनों का लेंथ क्या होगा? सेम होगा. एंड देन द लास्ट वन इज व्हाट? एंगल Q इक्वल टू एंगल R. वाई? बिकॉज दे बोथ आर 90 डिग्री, है ना. एंगल Q इक्वल टू एंगल R. तो बाय विच थियरम? RHS थियरम. व्हाट इज RHS थियरम? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड. आपने दो ट्राइंगल में देखा कि इन दोनों का राइट एंगल सेम है, दोनों का हाइपोटेन्यूज, दोनों ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज OP है, सो दोनों का हाइपोटेन्यूज भी सेम है और दोनों का एक एक साइड भी सेम है, OQ और OR. सो बाय RHS थियरम बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल, तो उनके बाकी सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे. सो इसी के लिए PQ और PR भी क्या होगा? इक्वल होगा. सो PQ इक्वल्स टू PR. In this way we have proved that the length of the tangents from an exterior point are always equal. एक exterior point से जो दो tangent बनते हैं सर्कल को, वो दोनों का लेंथ क्या होता है? सेम. So this is your theorem 10.3 students. इसका प्रूफ आपको लर्न करना है. Okay students? Now students, let us start with our exercise 10.2 of our NCERT textbook. Okay, exercise 10.2 का question 1 है choose the correct option, यानी MCQ है ये. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. आप फिगर में देख सकते हैं Q is an exterior point and Q से लेके length of the tangent यानी QT जो आपका है, TQ या QT आप बोल सकते हैं, it is 24 centimeter. And the distance of Q from the center is 25 centimeter. तो Q से लेके सेंटर P जोड़ दिया हमने, वो 25 centimeter है. You have to find the radius of the circle. Very easy, वेरी इजी. इस तरह के सम हमने पहले भी किया एक्सरसाइज 10.1 में. आपको TQ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और PQ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और आपको रेडियस यानी PT निकालना है. तो वी ऑल नो दैट दिस ट्राइंगल PTQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. T इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वहाँ पे 90 डिग्री होगा. तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं हम लोग. ओके, इट इज PQ स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? PQ मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर. आप जैसे नॉर्मल लगाते स्टूडेंट्स वैसे ही लगाना पाइथागोरस थ्योरम. ओके, PQ स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर. तो PQ स्क्वायर कितना होगा? 25 का स्क्वायर, और इस तरफ से TQ स्क्वायर कितना होगा? 24 का स्क्वायर. तो 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576. दोनों को जब माइनस करेंगे तो आएगा 49. तो वो आपको मिलेगा PT स्क्वायर. PT स्क्वायर इज 49, तो PT इज रूट 49. तो रूट 49 कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर. सो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर. वेरी इजी सम स्टूडेंट्स. सिंपली आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने का है. ओके, दोनों मेजरमेंट्स दे दिए थे TQ और PQ, आपको PT निकालना था यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके स्टूडेंट्स, now your second question is also a multiple choice question. Okay, what is given here? In the given figure, if TP and TQ are the two tangents to a circle, आप देख सकते हैं ना, T is an exterior point, तो कितने tangent बनेंगे? दो. तो you have seen that two TP and TQ are the two tangents to the circle with center O. और सेंटर O पे कितना एंगल बन रहा है? एंगल POQ is given 110 डिग्री. then you have to find PTQ. सामने वाला एंगल फाइंड करने का है PTQ. POQ कितना दिया? 110 डिग्री, और आपको PTQ निकालना है, उसका ऑपोजिट एंगल. तो हाउ विल यू डू? तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट हियर अ क्वाड्रिलेटरल इज बीइंग फॉर्म्ड. क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? POQT, है ना. POQT इज अ क्वाड्रिलेटरल, और एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री. द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री. वी हैव स्टडीड इन अवर लोअर क्लासेस. ट्राइंगल के 3 एंगल का टोटल होता है 180, बट क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री. तो हियर 4 एंगल्स मीन्स व्हाट? एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T. ओके, नाउ वी नो दैट P एंड Q, P और Q पे कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, बिकॉज दे आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स. सो P पे भी 90 डिग्री और Q पे भी 90 डिग्री, एंड O इज हाउ मच? 110 डिग्री. So instead of P we have written 90 डिग्री प्लस O की जगह 110 डिग्री प्लस Q की जगह 90 डिग्री प्लस एंगल T you have to find equal to 360 डिग्री. Okay, now 90 plus 110 is 200. 200 plus 90 will be 290 डिग्री. तो 290 डिग्री प्लस एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री. अब 290 को इधर RHS में भेज दो तो हो जाएगा माइनस 290. सो एंगल T कितना होगा? 360 माइनस 290, दैट इज हाउ मच? 70 डिग्री.
सो दिस एंगल टी, इसका पूरा नाम बोलोगे तो पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज हाउ मच 70 डिग्री। वेरी इजी, एक क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल पता थे, चौथा निकालना था हमको। ओके, similarly third example now. Okay, what is there in third question now? If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, means what? आप देख सकते हो कि एक्सटीरियर पॉइंट P है, वहाँ से 2 टेंजेंट जा रहे हैं, क्या क्या, PA और PB, और P पे कितना एंगल है 80 डिग्री, मतलब एंगल APB। देखो सोल्यूशन का पहला स्टेटमेंट, हियर एंगल APB, एंगल APB पूरा एंगल वो कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। तो यू हैव टू फाइंड व्हाट, POA, आपको POA निकालना है। POA कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम POA के बारे में भूल जाते हैं, पहले तो हम क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या, OAPB, कैन यू सी OAPB, है ना, जिसमें 4 एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल O, एंगल A, एंगल P और एंगल B। ओके, उसमें से हमको 3 एंगल पता है, कौन कौन सा, A और B तो 90-90 है, और P पे कितना है 80 डिग्री है। तो लेट अस पुट द वैल्यूज। O का पूरा नाम दिया है AOB, तो एंगल AOB प्लस A एंगल कितना है 90 डिग्री, प्लस P एंगल कितना 80 डिग्री, प्लस B एंगल कितना 90 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री। In this quadrilateral OAPB, we know 3 angles. Which are those 3 angles? एक एंगल A, एक एंगल P और एक एंगल B। A और B तो दोनों कितने 90-90, और एंगल P कितना दिया है 80 डिग्री, तो उन तीनों की वैल्यू पुट कर दी। तो 90 प्लस 80 इज 170, 170 प्लस 90 इज 260 डिग्री। सो एंगल AOB कितना होगा, 360 माइनस 260, दैट इज हाउ मच 100 डिग्री। तो ये तो AOB पूरा निकला, AOB पूरा एंगल कितना है 100 डिग्री। तो ये जो अपन को चाहिए ना POA, वो POA क्या है, उसका हाफ है। POA एंड POB दे बोथ आर हाफ ऑफ AOB, AOB का आधा है ये POA और POB। सो देयरफॉर एंगल POA इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ AOB, एंड AOB इज हाउ मच 100, तो 100 का हाफ कितना हो गया 50 डिग्री। वेरी इजी स्टूडेंट्स, हमको निकालना क्या था, पहले हमने क्वाड्रिलेटरल लगा दिया, 3 एंगल पता था तो हमने चौथा एंगल निकाल दिया। AOB कितना निकला 100, अब POA क्या है, AOB का आधा है, सो हाफ ऑफ 100 दैट इज हाउ मच 50 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द क्वेश्चन, यू लुक इनटू द टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter, then find the radius of the circle। मतलब क्या दिया हुआ है, that A is an exterior point और A से लेके tangent का जो लेंथ है, okay, it is 4 centimeter, means if AT is the tangent then AT equal to how much 4 centimeter, और A से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। So it is the same sum which we are doing again and again. We all know that if QT is the radius of circle, then angle T is how much 90 degree, because radius is perpendicular to the tangent। तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है OA, ओके, देन OA स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स, यहाँ पे A की जगह P लिख दिया गया है, यू कंसिडर इट एज A, देन इट इज OA स्क्वायर इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस TO स्क्वायर, ओके, AT स्क्वायर प्लस TO स्क्वायर या OT स्क्वायर, ओके। नाउ OA स्क्वायर इज हाउ मच 5 स्क्वायर, यू मेक द करेक्शन, P की जगह पे A आएगा, OA स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड, OT इज योर रेडियस, प्लस AT स्क्वायर, इट इज नॉट PT स्क्वायर, इट इज AT स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 4 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया अभी हमारा ये, देयरफॉर 5 स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 स्क्वायर कितना होता है 16, तो 25 माइनस 16 कर दो तो भी कितना आ जाएगा 9, तो OT स्क्वायर 9 आएगा, तो OT कितना हो जाएगा 3। आपको ऐसे कैलकुलेशन करना है तो भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल 25 माइनस 16 इज हाउ मच 9, तो OT स्क्वायर इज 9, सो OT इक्वल टू 3, एंड OT मीन्स व्हाट, रेडियस, सो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाउ मच 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इजी, आपको AT टेंजेंट का लेंथ 4 दिया हुआ है, OA आपको डिस्टेंस सेंटर से लेके A पॉइंट का 5 सेंटीमीटर, आपको रेडियस लगाना है, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7।
ओके स्टूडेंट्स, इस तरह का सम एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द क्वेश्चन? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल स्टूडेंट्स? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? टू सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर. दोनों का सेंटर तो सेम है बट देयर रेडियाई आर डिफरेंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो सर्कल्स है, दोनों का सेम सेंटर ओ है ना. एक सर्कल छोटा है और एक बाहर बड़ा सर्कल है, दोनों का सेम सेंटर ओ है, तो दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो यहाँ पे क्या बोला है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. तो आप देख सकते हैं कि छोटा सर्कल का रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर है और बड़ा सर्कल का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये लोग क्या बोल रहे हैं कि लार्जर सर्कल का एक कॉर्ड ऐसा बनाओ. एंड व्हाट इज अ कॉर्ड? अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच टचेस द 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल. जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है. तो ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल. तो ए बी एक कॉर्ड है. तो बड़े सर्कल का कॉर्ड जो है ना, छोटे सर्कल को जस्ट टच करना चाहिए एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट पे टच करेगा तो वो छोटे सर्कल के लिए क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा. क्या बन जाएगा? टेंजेंट. तो हियर यू कैन सी दैट here AB is a chord of bigger circle. AB is a chord of bigger circle such that it is a tangent to the smaller circle at which point? At point P. है ना. बड़े सर्कल का कॉर्ड ऐसे बनाओ कि वो छोटे सर्कल का क्या बन जाए? टेंजेंट बन जाए, एक पॉइंट पे उसको टच करे. तो हियर P is the point of contact. So we all know that OP is perpendicular to AB, क्योंकि OP रेडियस है और AB उसका टेंजेंट है छोटे सर्कल के लिए. Now you can see that in this triangle OAP, here P is 90 डिग्री, क्योंकि P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था तो P 90 डिग्री है. तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. ओके, तो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. ओके, तो OA कितना है? बड़े सर्कल का रेडियस 5 स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर. OP इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. तो 5 स्क्वायर होता है 25, 3 स्क्वायर होता है 9. तो 9 को इस तरफ भेज दिया. 25 माइनस 9 कितना हो गया? 16. सो AP स्क्वायर इज 16. तो AP कितना मिल गया? उसका रूट यानी कितना? 4 सेंटीमीटर. तो यू गॉट AP, आपको AP मिला है. एंड यू वांट व्हाट? पूरा AB, आपको पूरे कॉर्ड का लेंथ चाहिए AB. तो वी ऑल नो दैट AB इज व्हाट? ट्वाइस ऑफ AP. ओके, तो AB इज ट्वाइस ऑफ AP. क्यों? क्योंकि ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस जो बनाते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, है ना, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, हाफ ब्रेक कर देता है. ये हमने 9th में किया हुआ है ये. तो ये जो P पॉइंट है ना, वो मिड पॉइंट है AB का. ओके, सो AB इज ट्वाइस AP. तो ट्वाइस ऑफ AP इज हाउ मच? 4. तो 2 into 4 इज हाउ मच? 8 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह के सम्स बहुत सारे आते हैं, इसका प्रैक्टिस कर लो. ओके, बड़ा सर्कल का रेडियस दिया होगा, छोटा सर्कल का रेडियस दिया होगा, और एक कॉर्ड का लेंथ दिया फाइंड करना होगा. ओके, तो इन दिस वे वी विल सॉल्व. आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, अ राइट एंगल ट्राइंगल. यू विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो यू विल गेट AP. हाफ मिला आपको, तो आपको AB उसका डबल कर देने का. 2 into 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दैट टाइप. जो भी हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का किया है ना, तो आई हैव गिवन एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन. ओके, हियर थोड़ा सा और ट्विस्ट किया इसको. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर देयर, दे हैव अ कॉमन सेंटर O. द कॉर्ड AB टू द बिगर सर्कल, बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है, टचेस द स्मॉलर सर्कल एट P. सो बड़े सर्कल का कॉर्ड छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है. इफ OP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, OP मीन्स रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल. स्मॉलर सर्कल का रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर. एंड AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ पे उल्टा कर दिया, आपको कॉर्ड का लेंथ दे दिया है. AB इक्वल टू हाउ मच? 8 सेंटीमीटर. देन यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल. तो इस फिगर में बड़े सर्कल का रेडियस क्या है? OA. सो यू हैव टू फाइंड OA. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी ऑल नो दैट AB इज अ कॉर्ड टू द बिगर सर्कल and it is perpendicular what? It is the tangent to the smaller circle. So OP is perpendicular to what? AB. So P is the midpoint of AB. तो पूरा AB आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, तो AP कितना होगा? AP उस 8 का हाफ होगा. तो हाफ ऑफ AB दैट इज हाफ ऑफ 8. तो AP कितना मिल गया? 4 सेंटीमीटर. नाउ सेम ये जो ट्राइंगल OAP है या APO है, वहाँ पे P कितना है? 90 डिग्री है. तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम. AO स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. तो OP मतलब छोटे सर्कल का रेडियस यानी 3 स्क्वायर प्लस AP अभी हमने निकाला ना, पूरा AB का आधा 8 का आधा 4. तो AP स्क्वायर इज 4 स्क्वायर. सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16. तो 9 प्लस 16 इज हाउ मच? 25.
तो AO स्क्वायर अगर 25 है तो AO कितना होगा, 25 का रूट यानी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर. एंड AO मीन्स व्हाट, इट इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल. So the radius of bigger circle is 25 का square root, that is how much, 5 centimeter. I hope you understood. It's a very easy sum. Okay students. So students, by this we end our chapter. Okay, we have discussed all the topics of these chapters and we have solved all the sums of these chapters. जो sums हमको करने थे according to बोर्ड के जो रूल्स है उन्होंने जो भेजा था उसके हिसाब से जो सम्स करने थे, I have solved all the sums. You also solve these sums in your notebook and then do more practice of such type of sums. Okay students, till then thank you. We will meet with the new chapter. Okay students, thank you.